Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. All of you can hear me? Huh? Afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Let us start with the lesson. Okay. We were covering the 7th lesson of geography. Okay. And today we will continue with the topic communication. Okay. So today is 21st. Communication. Okay. Good morning, ma'am. Good afternoon, beta. ठीक है. It is 12:42. ठीक है ना? And yesterday 2 children. मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। मेरी आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है. Yes, ma'am. यस चलो ठीक है. मैम सही है. Okay. Now let us start with this. What is communication? If we go through our book, okay, the book that is page number 52, what we see? It is the process of conveying messages to others. What is communication? In simple words, okay, what we see is, in simple words, communication is the मैम आपका वीडियो पॉज हो गया है. communication is the process of वीडियो तो दिख रहा है बेटा. कैसे कह रहे हो कि वीडियो नहीं दिख रहा है? स्पॉटलाइट ऑन है. मैम पॉज हो गया है. मैम सही हो गया. पॉज नहीं हुआ है. आवाज भी धीरे आ रही है। See, communication, what we understand by the communication, word communication, it is the process. It is the process of conveying messages to others. ठीक है ना? जब हम अपनी बात दूसरों को पहुंचाते हैं, जिस माध्यम से हम अपनी बात को जो है दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं. ओके. Now have a look. If you want to define communication, how can we define it? Okay, we can define communication as the communication. See, it can be defined as, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. It can be defined as the imparting of. It is defined as the imparting of. Okay, imparting or exchanging of information, or exchanging of information और कैसे हम इस चीज को करते हैं, हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं. या तो हम बोल के पहुंचाते हैं, बाय स्पीकिंग. ईदर वी डू इट बाय स्पीकिंग, ओके, और व्हाट वी डू इज वी राइट इट. या तो हम लिख के पहुंचाते हैं, ओके, और थ्रू अदर मीडियम. ठीक है ना? ठीक है ना? So what we see is, we see that communication can be defined as the imparting or exchanging of information by speaking, writing, okay, or using other medium. ठीक है ना? यहाँ पे हम using लिख सकते हैं. यस मैम. Other mediums. Okay. Now what I would like to say is, yesterday I found 2 students joining with the name, okay, process of conveying messages to others, and this message can be conveyed either by speaking or by writing, or we can use other mediums. आज के डेट में जो है तकनीक के क्षेत्र में हम लोग इतने अग्रणी हो गए हैं, इतने अग्रसर हो गए हैं कि हम जो है बहुत सारे माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए. शुरू से ही अगर आप देखते आ रहे हैं तो अगर आप देखेंगे कि शुरुआत में जो है we
in the very beginning, what we saw that the birds, like the pigeons, they were specially trained and they were used for sending messages from one place to another. Then we had the role of we saw how the messengers, they played their important role. After the messengers, we saw, okay, this the process of writing letters was started, okay, and messages, okay, it was being forwarded. And with passage of time, with the advancement in the field of science and technology, at present what we see with a single click of the mouse we can connect to different parts of the world. ओके घर बैठे ही हम पूरे विश्व को जो है ओके अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं. नाउ what we see is with the development of technology, humans have devised new and fast modes of communication. If you look at figure C, the figure 7.10, अगर आप 7.10 देख रहे हैं तो देखिए पहले वाले चित्र में आप देख सकते हैं कि दो लोग एक दूसरे को जो है कुछ बोल के जो है अपनी बात पहुंचा रहे हैं. ठीक है. दूसरे में आप देख सकते हैं कि मैसेंजर्स का प्रयोग किया जाता था. ओके वो लोग. मैम माइक दूर है, आवाज धीरे आ रही है. किसकी बेटा? आपकी. मैम आपकी. मैम आपकी. मेरी आवाज धीरे आ रही है. ओके. नहीं मैम सही है. मैम माइक दूर है. वॉल्यूम बढ़ा लो. माइक दूर नहीं है बेटा. देखिए इट इज मैक्सिमम द लेवल नहीं ऑफ. मैम आवाज ठीक आ जब रहा है हाथ मैम. पकड़ के पास में ला रही हैं तो फिर आवाज अच्छा आ रहा है. अच्छा ठीक है, चलो इसको नहीं मैम सही है. हाथ से पकड़ के ही बोल दे रही हूँ. ठीक है. तो देखो यस मैम. if we go through the second picture, what we see in the second picture, what we can see a person. ओके यहाँ पे एक व्यक्ति को हम देख सकते हैं जो डुगडुगी जाके जो है ओके जगह जगह जाके जो है वो सुनो 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 ऐसे करके नहीं बोलते थे. अगर आप पुरानी मूवीज देखेंगे, टेली सीरियल्स यस देखेंगे मैम. तो आप देखेंगे कि राजा जी का ये संदेश है. यस आम मैम. आम प्रजा से कहा जाता है कि वो सब भोजन करने आए या फिर ऐसे करके जो है. छोटा भीम में भी दिखा था. ठीक है ना. ओके. उसके बाद देखिए यहाँ पे एक पोस्टमैन खड़ा है. ओके लेटर बॉक्स के पास खड़ा है. सो वी सी द लेटर्स. ओके दे वर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. देन आफ्टर दैट व्हाट वी कैन सी द बुक्स, वी कैन सी द न्यूज़पेपर्स. और उसके बाद देखिए in the final picture, in the final one what we see the electronic media. हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख सकते हैं, मास मीडिया देख सकते हैं, प्रिंट मीडिया देख सकते हैं. हर प्रकार की जो है ओके तकनीकी वस्तुओं का जो है, माध्यमों का जो है इसमें इस्तेमाल हुआ है. देखो यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर भी रखा गया है, लैपटॉप भी रखा गया है, ओके हैंडसेट भी रखा गया है. उसके बाद आप टेलीफोन देख सकते हैं, टाइपराइटर देख सकते हैं, यू कैन सी द पेजर, यू कैन सी द टेलीविजन. और उसके बाद आप लोगों को देख सकते हैं वो क्या, वो Fax. पर्दे पे जो है चीजों को देख रहे हैं और उसके ऊपर आप सैटेलाइट देख सकते हैं. ठीक है ना. ओके. So what we see is the advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. अब जो चीजें हमें बहुत समय बाद पता चलती थी, अब जो है इस तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी होने की वजह से हमें तुरंत जो है कोई भी बात पता चल जाती है. अब देखो हम लोग भारतवर्ष में रह रहे हैं और अभी हम देख रहे हैं कि जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पे शांति का माहौल है. वहां पे जो है तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रखी है और हमें सारा जो वहां की जो स्थिति है ओके उससे हम अवगत हो पा रहे हैं. इट इज थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दैट इज द न्यूज चैनल्स बीइंग टेलीकास्टेड ऑन द टेलीविजन. ओके एंड थ्रू द मोबाइल में भी हमारे Yes, जो है हम जो है न्यूज जो है देख सकते हैं. ठीक है. अलग अलग चैनल्स पे जो है कनेक्ट करके हम देख सकते हैं. फेसबुक में हम देख सकते हैं, ट्विटर में हम लोग जा सकते हैं. सो देयर आर मेनी थिंग्स थ्रू विच वी कैन ओके गेन इंफॉर्मेशन अबाउट एनी टॉपिक, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. नाउ सी different modes of communication are used to provide information, to educate as well as to entertain. ठीक है. अब शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात कर रहे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है हमारे देश में जो है एक बहुत ही अच्छा जो है व्यवस्था हुआ है उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं अटेंड कर सकते हैं, जो रिमोट एरियाज में है या जिनकी जो है कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से जो है वो रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते हैं. अब जैसे कि हाउसवाइफ्स हो गई, ओके उनको घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, लेकिन उनके अंदर पढ़ने की चाह है
तो डिस्टेंस एजुकेशन जो है आज के डेट में बहुत ही सक्रिय हो रखा है और इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं दिस ओके दिस मीडियम इज देयर EduSat. Okay, now it is your home task, try to find out the full form of EduSat. इसका मतलब क्या है? Okay, इसके तहत हम देख रहे हैं कि okay, और institutions, educational institutions like IGNOU, ठीक है ना? I will tell you the full form of IGNOU. It is Indira Gandhi National Open University, ठीक है ना? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. अब इस इग्नू के तहत, ठीक है ना, ओके, अंडर दिस यूनिवर्सिटी, okay, education is being provided to the students who are staying at home. और पत्राचार द्वारा, ठीक है ना, असाइनमेंट थ्रू असाइनमेंट्स आप अपने जो है टास्क जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं. ओके, आप, ठीक है ना, ये जो यूनिवर्सिटी है ये अलग अलग कोर्सेज में जो है एजुकेशन आपको दे रही है और इसमें आप एनरोल कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं फॉर एनी ऑफ द कोर्सेज, चाहे वो बैचलर कोर्स हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो. ओके, और आप जो है इसमें जो है एनरोल कर सकते हैं और असाइनमेंट्स लिख लिख के, ठीक है ना, यूनिवर्सिटीज जो है वो आपको बाय पोस्ट, एवरीथिंग इज बीइंग कंडक्टेड बाय पोस्ट एंड थ्रू द सैटेलाइट. सैटेलाइट के माध्यम से एडुसैट जो है ये एक प्रकार का जो है ये सैटेलाइट है जो स्थापित किया गया है अंतरिक्ष में और इस सैटेलाइट के तहत जो है सारे जो बच्चे अपने घर में जो बैठे हैं, ओके, अपने अपने टीवी चैनल्स को वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें कुछ स्पेशल चैनल्स हैं, ठीक है ना. अगर आप नेशनल चैनल ओपन करेंगे तो उसमें आप देखेंगे MHRD 01, 02 ऐसे करके जो है चैनल्स आएंगे, ठीक है, ठीक है ना. यस मैम. अब ये जो चैनल्स हैं क्या है, इन चैनल्स के द्वारा जो है जो घर बैठे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, दे कैन नॉट अटेंड द क्लासरूम्स. ओके, दे आर प्रोवाइडेड वर्ल्ड वाइड क्लासरूम. विश्व स्तर पे जो है उनको क्लासरूम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्लासरूम फैसिलिटी दी जा रही है. अब जैसे अभी आप पढ़ रहे हो ना, ड्यू टू कोविड, आपने कभी सोचा था कि आप घर पे रह के ऑनलाइन कनेक्ट होंगे, कभी पढ़ाई करेंगे? नहीं ना. मैम. लेकिन आज के डेट में आप पढ़ रहे हैं ना, आपको लिंक भेजा जा रहा है, आप लिंक से जुड़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, जो नहीं समझ Yes, में आ रहा है आप हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं और फिर हम आपको रिप्लाई भेज रहे हैं, आपके रेस्पॉन्सेस भेज रहे हैं, ठीक है ना. तो ये MHRD ये जो है चैनल्स हैं, इन चैनल्स में जो है हर विषय की जो है पढ़ाई होती है, हर विषय की. यस मैम. इंग्लिश, मैथ्स, ओके, ऑल द सब्जेक्ट्स, जितने भी कोर्सेज इग्नू में है उन सारे कोर्सेज की पढ़ाई जो है नेशनल चैनल पे कराई जाती है. एंड the students who have enrolled themselves under this university, they can attend these classrooms, they can gain information, and on the basis of the information and the books that have been provided to them by the university, okay, वो अपने assignments पूरा करते हैं और assignments को लिख के वो बाय पोस्ट जो है यूनिवर्सिटी को भेजते हैं और उसको जो है उसको चेक करके जो है, ओके, उस उनके असाइनमेंट्स जो होते हैं उनको चेक करके टीचर्स उनको मार्क्स अलॉट करते हैं. ओके, सो ये कैसे संभव हो पाया है? ये संभव हो पाया है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, communication के लिए. ठीक है ना. नो, व्हाट इज द फुल फॉर्म, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्नोलॉजी? तकनीक से हम क्या समझते हैं? In simple terms, if you want to understand what is technology, how will understand? मैम इससे हम मैम आसानी से किसी से बात कर सकते हैं. हाँ, मैम टेक्नोलॉजी में हम आसानी से कोई भी चीज काम भी कर किसी सकते भी हैं. काम को आसानी से कर सकते हैं. ओके, हमारी लाइफ को फास्टेस्ट बनाता है मैम. हाँ, आपकी लाइफ को फास्ट बनाता है. So मैम टेक्नोलॉजी इज साइंस ऑफ क्राफ्ट. it is a science of craft. Okay, ठीक है, ठीक है ना. आपके पास जो न्यूनतम जो स्किल है, ठीक है ना, जो गुण है, ओके, आपके पास जो न्यूनतम जो गुण है, ठीक है, अभी जो आपके पास हुनर है, ओके, और जो ज्ञान है उसका जब आप प्रयोग करते हैं, ओके,
ठीक है ना, किसी भी कार्य को करने के लिए, तो उसको हम तकनीक कहते हैं। ओके, टेक्नोलॉजी इज अंडरस्टूड एज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट स्किल्स एंड नॉलेज इन डूइंग अ टास्क। राइट दिस चिल्ड्रन, आप इसको लिख लीजिए। ओके, एट टाइम्स हमारे पास आंसर होता है लेकिन हम उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ओके, तो तकनीक क्या है? तकनीक वो तकनीक एक प्रकार से हमारे पास जो भी हमारे पास ज्ञान है, जो भी हमारे पास जो गुण है, ओके, उनका जब हम इस्तेमाल करते हैं, ओके, न्यूनतम जो ज्ञान है, न्यूनतम जो गुण है, उसका जब इस्तेमाल करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, तो उसे हम तकनीक कहते हैं। अब मान लीजिए, ओके, मान लीजिए खेती ही ले लीजिए, यू टेक एग्रीकल्चर, यू टेक द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब एक व्यक्ति जो है पुरानी पद्धति, ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज कर रहा है। ओके, आप कंपेयर करिए पर्सन ए, आप यहाँ पे पर्सन ए को लीजिए और यहाँ पे पर्सन बी को लीजिए। दिस इज एन इलस्ट्रेशन। नाउ दिस पर्सन ए इज यूजिंग व्हाट? ट्रेडिशनल मेथड, ही इज यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। ठीक है ना, खेती करने के लिए जो है ये व्यक्ति जो है ट्रेडिशनल मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, और ये व्यक्ति जो है एडवांस्ड, ठीक है ना, एडवांस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। और दोनों के पास जमीनें एक बराबर है, दोनों के पास जो लैंड का प्लॉट है वो एक बराबर है। सपोजिंग आई टेक 5 बीघास, ओके, 5 बीघास ऑफ लैंड, ठीक है ना। नाउ ही इज यूजिंग व्हाट? ही इज यूजिंग द बुलक, ओके, ये बैल का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, ही इज यूजिंग द बुलक, ओके। और पुराने उनके पास जो ज्ञान है, एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट? डिपेंडिंग ऑन द रैन ऑन मानसून्स, ठीक है ना, मानसून का इंतजार कर रहे हैं। ओके, बैल का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। और मानसून्स का जो है और यहाँ पे जो है रेन वाटर, ट्रैक्टर रखिए, कोई जज से जुड़ा है। लीव इट बेटा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ओके ट्रैक्टर्स। यस मैम। नाउ व्हाट वी सी, यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस नरेश, हु यू आर? नरेश, राइट योर एडमिशन नंबर। आपने एडमिशन नंबर लिखिए। Write your admission number, Naresh. You have not joined with your admission number, Anushka Kaushik. Write your admission number. Okay. Now what we see is, okay, person A is using the traditional method of farming. He has the same plot as person B has. Okay, इनके पास भी 5 बीघा जमीन है। Okay, लेकिन ये इस्तेमाल कर रहे हैं आधुनिक तरीके खेती के जो है। Now what we see is, okay, as far as person B is concerned, he is using the advanced methods of farming. Okay, he is taking help of rainwater harvesting, he is taking help of tractors. Okay, now what will happen as far as the production is concerned? इसका जो है फसल के उत्पादन पे क्या असर होगा? Okay, will it be in favor of person A? ये जो तरीके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, okay, क्या ये इनको मदद करेगा इनके फसल की जो पैदावार है, जो प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाने में, कि कौन जो है ज्यादा किसकी खेत पे जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा? एंड ही इज यूजिंग द ओके द नॉर्मल सीड्स, ठीक है ना, ये जो नॉर्मल सीड्स होते हैं जो मार्केट में पाए जाते हैं, ओके, उसका ये प्रयोग कर रहे हैं, एंड फर्टिलाइजर्स। I hope the lower part is visible. It is always not visible. Okay, normal seeds and fertilizers. Okay, so he is using normal seeds and fertilizers, and this person, what he is doing, he is using HYV seeds, HYV seeds and organic manure.
अब ये ऑर्गेनिक मैन्योर का प्रयोग कर रहे हैं और HYV सीड्स का प्रयोग कर रहे हैं. नाउ यू टेल मी whose crop production will be more? Will the crop production of A will be more or B will be more? किसका क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होगा? अनिकेत, अनिकेत, Ma'am B. Yes, ma'am. tell me why? Ma'am, Aniket, B has more production. why? What is Ma'am, because he used technology. yes, he is using technology. तो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन पे कैसे असर हो रहा है? How? Tell me. मैम जैसे कि पर्सन ए अभी मॉनसून का इंतजार करेगा और ये रेन हार्वेस्टिंग से अपने खेतों की सिंचाई कर लेंगे. You will go for irrigation ना? यस मैम. जब तक पर्सन ए जो है मॉनसून का वेट मैम. करेंगे तब तक पर्सन बी जो है समय पे अपने खेतों की सिंचाई कर लेंगे. ठीक है ना? हाँ. और यस मैम. और जहां तक बीज का सवाल है, नॉर्मल सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स और HYV सीड्स एंड ऑर्गेनिक मैन्योर, इसका क्या प्रयोग है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? टेल मी हाउ HYV सीड्स विल बेनिफिट. जय आदित्य वर्मा, अनुज, HYV सीड्स का मतलब क्या होता है? अनुज राय, यस मैम. HYV सीड्स, Yes, ma'am. HYV सीड से हम क्या समझते हैं? किसी को पता है HYV सीड्स का मतलब क्या होता है? हाई वैरायटी यील्डिंग सीड्स. हाँ, हाई वैरायटी तो HVY हो जाएगा ना? हाँ मैम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. हाँ, हाई हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. इसका मतलब क्या हुआ? इसे हम क्या समझेंगे? यील्डिंग का मतलब क्या होता है? मान लीजिए अगर हम गुड क्वालिटी. यस, मान लीजिए अगर हम नॉर्मल बीज लगा रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग नॉर्मल बीज बो रहे हैं खेतों में, तो हो सकता है कि उन बीजों में से जो है कुछ बीज जो है वो उसमें प्लांट्स ना हो. ठीक है ना, उसमें से प्लांट्स ना निकले. ठीक है. एंड एज फार एज द क्रॉप इज कंसर्न, क्रॉप पे भी असर पड़ सकता है. लेकिन जब हम HYV सीड्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, व्हेन वी आर यूजिंग द HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ओके. मैम वो रेगुलर सीड से 10 गुना ज्यादा वो 10 गुना ज्यादा फसल देते हैं. यस, ज्यादा उत्पादन होता है. ठीक है ना, ओके. ये हमारे देश में जो हरित क्रांति आई थी उसी समय जो है इसका प्रयोग किया गया था. ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन, HYV seeds were part of the green revolution scheme. Okay, that was initiated by the agricultural scientist MS Swaminathan. And what we see, okay, 10 times the production is affected due to the use of these high yielding variety seeds. And organic manure जो होता है वो भी बहुत हेल्प करता है हमें सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करने में. ठीक है ना? So what we see, due to the application of technology, person B is able to increase his crop production. He is able to enhance his crop production. Okay, and the person who was using the traditional methods of farming, the bullocks, okay, and waiting for the monsoon, okay, he has to suffer a lot because he is not applying the latest techniques. और आज के डेट में हम देख रहे हैं कि ये जो किसान है, ठीक है ना, जो लोग खेती कर रहे हैं, इनको जो है एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से, ठीक है ना, कृषि विभाग जो है वो समय समय पे इनको गाइड करते रहता है. अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई फसल लगाया है और उस फसल के बीच में जो है वीड्स हो गए हैं, ठीक है ना, द अनवांटेड प्लांट्स, उन प्लांट्स को जो है आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं और देयर आर सम पेस्ट, ठीक है ना, जो आपके फसल को बर्बाद कर रहे हैं, तो ओके, what you can do, you can take guidance from the agricultural department. There are experts who are always ready to guide you, and with the help of their guidance you can enhance your crop production. So why is this how is this everything possible? All this is possible due to technology.
ठीक है ना, ये हमारे ही लोग हैं जो हमसे ज्यादा विकसित हैं, हमसे ज्यादा वो लोग शिक्षित हैं और वो हमारी सहायता कर रहे हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, ओके। सो now what we see is, see, through newspaper, radio and television we can communicate with a large number of people. They are therefore called mass media. What is mass media? mass media से हम क्या समझेंगे? It is the medium, okay, it is the medium of communication, ठीक है ना, through which, okay, we communicate, इसकी सहायता से हम जो है ज्यादा लोगों से जो है संपर्क कर पाते हैं, अपने बातों को जो है, अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं, through which we can, okay, communicate. Yes बेटा, मैम थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो, मैम with, हाँ, with a large group नंबर of ऑफ people. कम्युनिकेशन, हाँ, a large member of community भी लिख सकते हैं, with a large member of community, ठीक है ना। क्यों समुदाय, समुदाय के ऊपर भी तो जा सकते हैं, राष्ट्र के ऊपर, ओके, ठीक है ना। तो सी, इट इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विथ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यूजुअली मेंबर ऑफ कम्युनिटी नहीं होता है, विथ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल होता है, ओके। अगर हम कम्युनिटी लेंगे तो खाली समुदाय के बीच रह जाएगा। जब आप इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हो, ओके, व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशंस, जब आपका जन्म होता है, ओके, आपका पहला जो इंस्टीट्यूशन होता है वो फैमिली होता है। फैमिली के बाद आप कहाँ जाते हैं? आप समाज के जो है सदस्य होते हैं, ठीक है ना, ओके। देन फैमिली के बाद हम ले सकते हैं कम्युनिटी। हर व्यक्ति का एक अपना जो है समुदाय होता है, ओके, हाई कास्ट हो सकता है, लो कास्ट हो सकता है, बिजनेस कम्युनिटी हो सकता है। देन यू आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। आफ्टर बीइंग पार्ट ऑफ द सोसाइटी यू आर पार्ट ऑफ द नेशन, ठीक है ना, आप पूरे राष्ट्र के जो है सदस्य होते हैं। एंड व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग द इंटरनेशनल एरिना, ओके, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द वर्ल्ड, ठीक है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग जो है, दीज आर द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इन विच यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्व्स, ओके। तो अगर हम मास मीडिया की बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसा माध्यम है जिसके हेल्प से, जिसकी सहायता से आप इंटरनेशनल लेवल पे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? इज इट क्लियर? यस मैम। Okay, so example of mass media can be, some of the examples, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, News, magazines, radio, televisions, and internet. म्यूजिक, सेल फोन्स, Magazine, radio, television, and the internet. okay, मैम का वॉइस नहीं कटा है, मैम का वॉइस नहीं कट रहा है, मैम जो है तुम लोगों की बात भी सुन रही है और जो है याद करने की कोशिश कर रही है कि क्या क्या हो सकता है, हाँ? देखो, listen children, okay, I was just bifurcating, mass media जो है अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है ना। so this is part of print media, ठीक है ना। मास मीडिया में जो है देखो दो अलग अलग चीजें होती हैं, ओके। एक हो गया प्रिंट मीडिया, जिसमें आप कोई भी चीज को प्रिंट करके जो है लोगों के बीच सर्कुलेट करते हैं, ओके। न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, बुकलेट्स हो गए, पैम्पलेट्स हो गए, ठीक है ना। मैम फैक्स भी हो सकता है ना? हाँ, फैक्स हो सकता है लेकिन इट इज नॉट ऑन द पेपर ना। प्रिंट मीडिया हम उसे कहते हैं जो पेपर में होता है, ओके। व्हाट इज देयर इन द पेपर्स, ओके। सो वी टेक द न्यूज़पेपर, वी टेक द मैगजीन्स, बुकलेट्स, पैम्पलेट्स, एंड दिस रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मोबाइल हो गया, ओके, फैक्स, मास मीडिया,
फैक्स हो गया, पेजर हो गया, इसके अलावा आपके सैटेलाइट्स हो गए। टेलीविजन। ठीक है ना, टेलीविजन नहीं लिखे हैं यहाँ पे, न्यूज़पेपर लिख दिया है दोबारा, सॉरी। ओके, इट इज टेलीविजन। ओके, ठीक है ना। यस मैम। तो देखो ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। So what you see is, as far as media is concerned, जब हम अंडरस्टैंडिंग मीडिया चैप्टर पढ़ेंगे, ओके, सिविक्स में जब हम लेसन 6 पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उसमें हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग, इन दैट वी विल कम अक्रॉस दिस प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो ये रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, फैक्स, पेजर, सैटेलाइट्स, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दिस कैनॉट बी ऑपरेटेड विदाउट व्हाट, आज के डेट में आप रेडियो, आज के डेट में आप सेल वाले रेडियो देख रहे हैं, मिल रहा है सेल वाले रेडियो। ओके, नो मैम। इवन द रेडियोज, चार्जेबल रेडियोज आपको मिल रहे हैं, आप अपने मोबाइल में ही जो है रेडियो, जो अलग अलग जो चैनल्स हैं उन पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, एफएम रेडियो, isn't it? Okay, so now see, the satellites have made communication even faster. Satellites have made have helped in oil exploration, survey of forest, underground water, mineral wealth, weather forecast and disaster warning. Okay, now we can send telephonic communications through cellular phones, through internet. Have a look children. Now we can send electronic mails or emails through internet. इंटरनेट की सहायता से हम लोगों को ईमेल्स भेज सकते हैं, ठीक है ना। और देखो एक और चीज होती है, ओके, इसके बारे में आप पता करिएगा, व्हाट इज e-Gines? So today's homework is EduSat. You have to find about these two things, what is e-Gines and what is EduSat. This is your home task, try to find out. Okay, now see, मैम ओके मैम। मैम have a look. EduSat stands for वो एजुकेशन सैटेलाइट। Who is this? You have started with Google right now, huh? Let the class be over. मैम गूगल वहाँ का भक्त है। देखो, wireless have become very popular today. Okay, internet not only provides us with worldwide information and interaction, but has also made our lives more comfortable. अब इंटरनेट की सहायता से ना आप लोग पढ़ रहे हैं, हाँ, ये नेट कनेक्शन ही है ना, हाँ, ये नेट ही है जिसकी वजह से आप देखिए, आप अपने घर में जो है, जो जैसे है वैसे जो है आराम से क्लासेस कर रहा है, हाँ? कोई सो के पढ़ रहा है, वीडियो ऑफ कर दिया है, उसके बाद आराम से सोया है पंखे की हवा में, कोई कुछ खा भी रहे होंगे, लंच ब्रेक हो गया है, तो कोई खाते खाते पढ़ाई कर रहा होगा, हाँ, और कोई लुकिंग वर्मा टॉकिंग शर्मा भी होगा, हाँ, मोबाइल। एक्सक्यूज मी मैम। मैम यस बेटा, मैम HYV का फुल फॉर्म हाई यील्डिंग वैरायटी ना होगा? यस यस यस, थैंक्स बेटा, आई हैव लेफ्ट आउट V. Thank you. Have a look children. Okay, now see, okay, as far as this the internet is concerned, the internet is very much useful for us, okay, and it is all because of the technology. See, now we can reserve tickets for railways, airways and even cinemas and hotels sitting at home. ठीक है ना, अभी हम जो है घर बैठे जो है अपनी रेलवे की टिकट बुक कर सकते हैं। कैन यू टेल मी द वेबसाइट? रेलवे IRCTC। Yes, it is the मैम रेल IRCTC. यात्री। हाँ, it is railyatri.com भी है और IRCTC भी है। ओके, मैम एक RESS है। होगा बेटा। ओके, okay, so this chapter is over. We have completed this chapter. Now if you have any queries, any part of the chapter, you can ask. अभी हमारे पास समय है, ठीक है, 4 मिनट मैम है। ये कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हैं? बारे पूरा रामायण सुन ली, अब पूछ यस रही हो मैम, कि राम 5 जी कौन मिनट। है, हाँ, पूरा रामायण सुन ली और अब पूछ रही हो कि राम जी कौन है, हाँ। लेसन 7 ज्योग्राफी, जब भी मैं क्लास शुरू करती हूँ पहले ही बता देती हूँ कि मैं कौन सा लेसन पढ़ा रही हूँ। ओके, now I will make it a habit to मैम write the सारांश chapter. बोला था।
Okay, so this is lesson 7 of geography. So we have completed 2 lessons of geography. Okay, let us revise the lessons. हम लोग दोनों lessons को revise कर लेते हैं. Okay, now tell me, where is Aryan? Ananya, unmute yourself. Tell me बेटा, what do you understand by natural vegetation? Natural vegetation से आप क्या समझते हैं? Who is this 8471? नाम नहीं है, गुमनाम हो. मैम सरांश है। अभी रुको, अभी रीना मैम को बता रहे हैं. रुक जाओ, रीना मैम जुड़ी हुई मैम है. शायद कुछ सर्च कर रहा है इसलिए वाइब्रेट हो रही है। हाँ, हाँ देखो, ये कंप्लीट एकदम गूगल का आंसर है. दिस इज कंप्लीट गूगल आंसर. ओके, तो प्राकृतिक वनस्पति से हम क्या समझते हैं? हिंदी में एक्सप्लेन करो उसी चीज को जो आप अभी बताए हो, उसको हिंदी में एक्सप्लेन करो. हाँ, तो इसका सही से अनुवाद करिए. इंग्लिश में आपने बता दिया, अब इसको हिंदी में अनुवाद करिए. प्राकृतिक वनस्पति से हम क्या समझते हैं? Anybody else? मैम जो वनस्पति Naturally plant without human beings के help के प्राकृतिक वनस्पति की तरफ ये ऊन करता है। प्राकृतिक वनस्पति से हम उन वनस्पतियों को समझते हैं, उन पेड़ पौधों को समझते हैं जो बिना किसी मानव बाधा के, बिना किसी व्यक्ति के हाँ, हेल्प के लगाए हुए। इट इज ह्यूमन इंटरफेरेंस. ठीक है ना, मानव बाधा के हैं. ठीक है, बिना किसी मानव बाधा के जो है वो प्रकृति में अपने आप उत्पन्न हुई है. ओके, उन्हें हम Without human yes. Now there are 4 types of natural vegetation. What are they? मैम ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, डेसिडियस, थ्रोनी अरे बुश। natural vegetation is of 4 types. मैम तो आप गूगल से सर्च कर रहे हैं। Deciduous forest, temperate grasslands, thorny bushes and tundra vegetation. Yes, it is forest, grasslands, thorny bushes and shrubs, shrubs and scrubs, and the tundra vegetation. Where do we find the tundra vegetation? Khushi Gupta? In polar region. पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं. चलो, टुंड्रा वेजिटेशन में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? What type of natural vegetation we find in tundra vegetation? मैम मोजेस, sedges and lichens। Lichens. Okay, mosses and lichens. ठीक है ना? Okay, these are the type of. Now tell me. Okay, tell me the Great Lakes. Where are these Great Lakes? Great Lakes कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में है कि साउथ अमेरिका में? मैम साउथ अमेरिका। हाँ? मैम नॉर्थ अमेरिका। Okay. 1 minute से टाइम